Hello, good afternoon, student. My name is Hiral Raval. Today's date 30 September 2020. Subject Science, Standard 9th. Chapter number 9, Force and Laws of Motions. Okay, student. In previous lecture, we have studied what is force. Then we performed the activity. Then topic 9.1, Balance and Unbalanced Force. Here we perform the activity. See the seen in pictures A, B and C. Then in this video we have studied first law of motions. वो भी हमने पढ़ा था, है ना. गैलीलियो गैलीली वॉज, उसके जो बारे में भी हमने देखा था. गैलीलियो गैलीली का पूरा हमने जो है वो जो है उसका बायोग्राफी वो पढ़ी थी हमने. Then is this video we have performed activity 9.1. Make a pile of similar carom coins on a table as shown in figure 9.6. Attempt a sharp horizontal hit at the bottom of the pile using another carom coin or the striker. If the hit is strong enough, the bottom coin moves out quickly. Once the lowest coin is removed, the inertia of the other coins makes them fall vertically on the table. Okay. Then activity 9.2, set a 5 rupees coin on a stiff card. ये एक्टिविटी मैंने आपको घर पे होमवर्क के लिए दी थी, है ना, करने के लिए. Set a 5 rupee coin on a stiff card covering an empty glass tumbler standing on a table as shown in figure 9.7. Give the card a sharp horizontal flick with a finger. If we do it fast, then the card shoots away, allowing the coin to fall vertically into the glass tumbler due to its inertia. The inertia of the coin tries to maintain its state of rest even when the card flows off. कार्ड जो है वो अपने आप जो है वो फ्लोज मीन्स के उड़ जाता है. ओके. देन अनदर एक्टिविटी, activity 9.3. Okay. Place a water filled tumbler on a tray, hold the tray and turn around as fast as you can. हमें उसको होल्ड करके उसको जितना हो सके उतना होल्ड करना है. We observe that the water spills, है ना, वाटर स्पिल्स देख पाएंगे. Why? Observe that a groove is provided in a saucer for placing the tea cup. It prevents the cup from toppling over in case of sudden jerks. हमें ऑटोमेटिकली jerks आने लगते हैं. ओके. Then our topic 9.3, inertia and mass. What is inertia and what is mass? All the examples and activities given so far illustrate that there is a resistance offered by an object to change its state of motions. If it is at rest, it tends to remain at rest. कोई चीज़ सपोज रेस्ट में होती है तो हम उसको टच ना करें, विदाउट टचिंग वो रिमेनिंग एट रेस्ट, वो रेस्ट पे ही रहती है. इफ़ इट इज़ मूविंग, इट टेंड्स टू कीप मूविंग, है ना. हम मूव करना चालू करें तो वो मूविंग होती है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया. ये जो प्रॉपर्टी है जिसको हम इनर्शिया कहते हैं. डू ऑल बॉडीज़ हैव द सेम इनर्शिया? सारी जो बॉडीज़ है उसमें सेम इनर्शिया रहता है. वी नो दैट इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन अ बॉक्स फुल ऑफ बॉक्स. एम्प्टी बॉक्स हो, है ना, और भरा हुआ बॉक्स हो तो हम तो ईजी रहता है. जो बॉक्स एम्प्टी होता है उसको हमें पुशअप करना ईजी रहता है. सिमिलरली इफ़ वी किक अ फुटबॉल इट फ्लाइज अवे, है ना. फुटबॉल को हम किक करें तो वो फ्लाइज उड़ जाता है. बट इफ़ वी किक अ स्टोन ऑफ द सेम साइज विथ इक्वल फोर्स इट हार्डली मूव्स. बट उसी फुटबॉल के साइज़ का हमने सपोज स्टोन लिया, है ना, तो वो उड़ता है नहीं, क्योंकि उसको प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है, उसका मास जो है वो ज़्यादा है. वी मे इन फैक्ट गेट एन इंजरी
इन आवर फुट वाई डूइंग सो। हमें इंजरी हो जाती है, हम ऐसा करने जाए तो हमें चोट लग सकती है। सिमिलरली इन एक्टिविटी 9.2 इंस्टेड ऑफ a 5 rupees coin, if we use a 1 rupee coin, we find that a lesser force is required to perform the activity. 5 रुपीज़ के कॉइन की जगह पे हम 1 रुपीज़ का कॉइन लेंगे तो हमें फोर्स जो है वो कम लगाना पड़ेगा, है ना। A force that is just enough to cause a small cat to pick up a large velocity will produce a negligible change in the motion of a train. This is because, in comparison to the cat, the train has a much lesser tendency to change its state of motions. Accordingly, we say that the train has more inertia than the cat, clearly heavier or more massive object offer larger inertia. Quantitatively, in the inertia of an object is measured by its mass, है ना। inertia को हम उसके mass से ही measure कर सकते हैं। We may thus relate inertia and mass as follows. Inertia is the natural tendency. Inertia है वो natural tendency of an object to resist a change in its state of motions or of rest. कोई भी चीज़ रेस्ट में हो या तो मोशन में हो, इनर्शिया जो है वो नेचुरल टेंडेंसी है। एंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शियास। ओके, तो ये दोनों में वो डिफरेंस है। देन अगेन इनबिल्ट क्वेश्चंस आर हियर। एंड फर्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया, किस में ज़्यादा इनर्शिया है। ए अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज, देन बी अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन, and C a 5 rupees coin and a 1 rupees coin. Then second, in the following example, try to identify the number of times the velocity of the ball changes. A football player kicks a football to another player of his team who kicks the football towards the goal, है ना। एक फुटबॉल प्लेयर है, वो किक लगाता है। Then the goalkeeper of the opposite team collects the football and kicks it towards a player of his own team. Also identify the agent supplying the force in each case. हमें देखना है कि किस में inertia जो है वो ज़्यादा होता है। Then third questions, explain why some of the leaves may get detached from a tree इफ़ वी वाइग्रोशियली शेक इट्स ब्रांच। हम उसकी ब्रांच को एकदम जोर जोर से हिलाते हैं तो बहुत सारे जो लीव्स है, बहुत सारे जो पत्ते हैं वो अपने आप ट्रीज से गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है वो हमें एक्सप्लेन करना है। देन फोर्थ क्वेश्चन, वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शंस व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप एंड फॉल backwards when it accelerates from rest. Okay, then 9.4 topic second law of motions. तो फर्स्ट मो हमारा मोशंस का हो गया। फर्स्ट लॉज ऑफ मोशंस क्या कहता है, व्हेन कोई भी ऑब्जेक्ट को हम सपोज टच ना करें विदाउट टचिंग, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है वो रेस्ट में ही रहता है और जो मोशन में रहता है वो अपना मोशन चालू रखता है। ओके, एंड द विदाउट एक्सटर्नल फोर्स कोई भी चेंजेस उसमें नहीं होते हैं। नाउ वी स्टडी द सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस इंडिकेट दैट व्हेन एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी चेंजेस, दैट इज द ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सीलरेशन। ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन आ जाता है। एक्सीलरेशन इज द अनदर क्वांटिटी, है ना। द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशंस। वी वुड नाउ लाइक टू स्टडी हाउ द एक्सीलरेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाई टू इट एंड हाउ वी मेज़र अ फोर्स। हम फोर्स को कैसे मेज़र कर सकते हैं। लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम योर एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में से हमें ऐसे ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे।
During the game of table tennis, if the ball hits a player, it does not hurt him, है ना। हम टेबल टेनिस की जब गेम खेलते हैं तो प्लेयर्स को सपोज कोई बॉल लग जाता है तो इट डज नॉट हर्ट हिम। ऑन द अदर हैंड व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्पेक्टेकर इट मे हर्ट हिम, है ना। पर जो क्रिकेट में जो फास्ट बॉल होता है और वो जो बॉल है वो सपोज कोई ऑडियंस को भी लग जाए तो उसको ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि बिकॉज वो फोर्स से आता है। A truck at rest does not require any attentions when parked along a roadside. एक ट्रक को एक रोड साइड पे एक पार्किंग किया है, ओके। तो इट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन, बट अ मूविंग ट्रक इवन एट स्पीड एज लो एज 5 मीटर पर सेकेंड में किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ। बट कोई ट्रक ऐसे हमारे सामने से चलती है, भले उसकी स्पीड लो हो, यहाँ पे स्पीड लिखी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो भी वो एक कोई पर्सन सपोज रास्ते पे खड़ा है तो उसको वो मार सकती है ना, क्योंकि वो मूविंग ट्रक है इसके लिए। और स्मॉल तो यहाँ वेरियस हमें अलग अलग एग्जाम्पल देके हमें बताना चाहते हैं। अ स्मॉल मास सच एज अ बुलेट में किल अ पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन। एक गन से सपोज छोटी ही गोली निकालते हैं पर स्पीड से आती है तो इंसान मर जाता है, ओके। दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। मीन्स के कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डिपेंड्स करता है उसके मास एंड वेलोसिटी में। सिमिलरली इफ एन ऑब्जेक्ट is to be accelerated, we know that a greater force is required to give a greater velocity, okay। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो, ओके, एक्सीलरेटेड फोर्स से होता है तो जिसकी सपोज वो जो ग्रेटर फोर्स हम रिक्वायर्ड करते हैं उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है। इन अदर वर्ड्स there appears to exist some quantity of importance that combines the object mass and velocity। तो एक क्वांटिटी यहाँ पे लिखी है जो मास एंड वेलोसिटी को कंबाइन करती है, ओके स्टूडेंट। वन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम वॉज इंट्रोड्यूस बाय न्यूटन, ओके। यहाँ पे न्यूटन की बात की, न्यूटन इज़ द वन ऑफ द साइंटिस्ट नेम। The momentum p of an object is defined as the product of its mass m and velocity v. So we derived p is equal to m into v. ये एक क्वांटिटी है वो एग्जाम्पल के लिए ज़रूरी है, ओके। p is a linear momentum when m is equal to mass of the object and v is equal to velocity, ओके। मास एंड वेलोसिटी से ही बनता है, ओके। मास का यूनिट सपोज हम केजी ले लें, हमें सपोज एमवी का एक यूनिट बनाना है, ओके। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लिनियर मोमेंटम? सो मास का यूनिट हम केजी ले लें और वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकेंड में हम मेज़र करते हैं। सो द यूनिट ऑफ मोमेंटम is equal to kg into meter per second. Smallest unit gram into centimeter per second. So these are the MKS and CGS unit of momentum, okay. Momentum has both direction and magnitude. Its directions is the same as that value of velocity v. The SI unit of momentum is kilogram into meter per second. Since the application of an unbalanced force brings a change in the velocity of the object, it is therefore clear that a force also produces a change of momentum. Let us consider a situation in which
A car with a dead battery is to be pushed along a straight road to give a speed of 1 मीटर पर सेकेंड. सपोज एक कार है उसके उसकी बैटरी जो है वो डेड मीन्स के ख़त्म हो गई है ना, और वो कार 1 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से स्पीड से वो जा रही है, विच इज़ सफिशियंट टू स्टार्ट इट्स इंजन. ये जो वेलोसिटी है जो उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए सफिशियंट है. इफ़ 1 or 2 पर्सन गिव अ सडन पुश. अभी सपोज आगे से कोई 2 बंदे आ जाते हैं, अनबैलेंस फोर्स जो हुआ सडनली वो पुश करते हैं टू इट हार्डली स्टार्ट्स. वो सिर्फ स्टार्ट ही हो पाएगी. बट अ कंटिन्यूस पुश ओवर सम टाइम रिजल्ट्स इन अ ग्रेजुअल एक्सीलेशंस ऑफ द कार टू दिस स्पीड. अभी सपोज कोई 2 बंदे उसको ज़ोर ज़ोर से धक्का दे रहे हैं ना, ज़्यादा टाइम तक दे रहे हैं, तो उसका एक्सीलेशन उसकी स्पीड पे उसकी इफ़ेक्ट होगी, वो बढ़ेगी. इट मीन्स दैट the change of momentum of the car is not only determined by the magnitude of the force but also by the time during which the force is exerted. ओके, क्या फोर्स लगाते हैं वो हमें देखना है. It may then also be concluded that the force is necessary to change the momentum of an object depends on the time rate at which the momentum is changed. The second law of motion states that the rate of changes of motions of an object is proportional to the applied unbalanced force in the directions of force. Okay, this is the second law of motion, जिसको हम लिख सकते हैं ऐसा एक इक्वेशन है. F इज इक्वल टू एम इंटू वे मास एंड एक्सीलेशंस. तो क्या मिलता है हमें? फोर्स मिलता है. ओके, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ओके, अभी जो ये हमने पढ़ा उसका ये मैथमेटिकल फॉर्मूलेशंस है सेकेंड लॉ का, जो मैंने लिखा हाउ टू कंक्लूड द एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए. सो टॉपिक 9.4.1 मैथमेटिकल फॉर्मूलेशंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस. सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving along a straight line with an initial velocity u. Initial velocity यहाँ पे u है. It is uniformly accelerated to velocity v in time t by the application of a constant force f throughout the time t. The initial and final momentum of the object will be p1. p1 is equal to mu and p2 is equal to mv respectively. The change in momentum is proportional to p2 minus p1. ओके, p2 क्या है? फाइनल मोमेंटम है, और p1 क्या है? इनिशियल मोमेंटम है. अभी p1 और p2 मोमेंटम का जो इक्वेशन था वो m इंटू वी है. ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे m इंटू यू माइनस m इंटू वी, मीन्स के m इंटू वी माइनस m इंटू यू. सो वी गेट, हम m को कॉमन ले लेंगे, सो अंदर ब्रैकेट में होगा v माइनस यू. The rate of change of momentum is proportional to m into v minus u upon t. Or the applied force F is equal to m proportional to m into v minus u. ओके, तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल की साइन हटा लेते हैं तो कोई कांस्टेंट रखते हैं. द कांस्टेंट इज k m. v माइनस यू अपॉन टी दैट इज एक्सेलरेशन, तो हमने लिखा a. Here a is equal to v minus u upon t is the accelerations, which is the rate of change of velocity. The quantity k is a constant of proportionality. The SI unit of mass and accelerations are kg and meter per second square respectively. The unit of force is so chosen that the value of the constant k becomes 1. For this, one unit of force is defined as the amount that produces an acceleration of 1 meter per second square in an object
of 1 kg mass, that is 1 unit of force, is equal to k into 1 kg into 1 meter per second. Thus the value of k becomes 1 from equations 9.3. F is equal to ma. ओके, ये जो है वो मैथमेटिकल स्टेप है, वो आपको एक बार देखने हैं. ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.